حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں فوج آ رہی ہے، ہلکا سا کویا جائے کم پہ آؤ، فوج آ رہی ہے جنگ کرنے کے لیے۔ آپ واپس گئے، کہنے لگے یا شہزاد رسول آپ تیار ہو جائیے، فوج آ رہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ آج رات عبادت کی رات مانگ لو، جاؤ آج رات عبادت کی رات مانگ لو، تو کل ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ گیا اور اس کے بعد نے عمر ابن سعد کو بتایا، سمر بن جوشن کو بتایا، یہ سب تیار ہو گئے، پوری قافلہ والے لوگ تیار ہو گئے، پورا فوج تیار ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں ایسا کرو، خیمے کا تناؤ ایک میں کر لو، خیمے اکٹھا کر لو، خیمے اکٹھا کیے گئے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا گڈھے خیمے کے بغل بغل کھود دو، گڈھا تیار کر دو، گڈھا کھودا گیا، لکڑیاں بھر دی گئی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگا دیا، اس لیے آگ لگایا کہ کوئی یتیم خیمے پر نہ حملہ کرے۔ وہاں بان اسلام تھی، نبی کی بیٹیاں تھی، امام پاک کی بیٹیاں تھی، فاطمہ کی کنیز بیٹھی ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو جو ظالم کہیں سے بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آگ لگا دی گئی، ایک ظالم آگے بڑھا کہنے لگا امام علی مقام اے حسین آپ نے دنیا میں ہی جہنم کی آگ کے لیے جلا دی معاذ اللہ۔ امام پاک کو تکلیف ہوا، اسی وقت اس کا گھوڑا وہاں سے بھاگا اور بھاگنے کے بعد میں آپ کے قریب گئے، آپ کو چھلاک لگایا، یہ ظالم گھوڑے سے نیچے گرا، گرنے کے بعد میں جین اس کے ہاتھ میں کس گئی اور گھوڑا گھسیٹتا ہوا اس کو آگ میں گرا دیا۔ یہ امام پاک کی کرامت کربلا کے میدان میں آئی ہے، اور بھی بڑی بڑی کرامتیں کربلا کے میدان میں آئی ہے۔ ایک ظالم نے اور کچھ کہا تھا، اسی وقت اس کی موت ہوئی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہاں کہاں دیکھو گے۔ امام علی مقام محتاج نہیں مختار تھے۔ اے میرے پیارو آگے تاریخ پڑھو، رات کی تاریخی آئی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی سی بچی ہیں، سینے پہ قرآن سجا لے کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا جان قرآن پڑھانا سکھا دو، بابا جان مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنی بچی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت سکینہ کو قرآن پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ امام پاک فرماتے ہیں بیٹی پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام پاک نے یہ پڑھا کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ آنکھ سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برسنے لگے۔ ننھی سی بیٹی پوچھ پڑتی ہے بابا جان علی اکبر کو قرآن پڑھائے تو آپ کے آنسو آنکھ میں آنسو نہ تھے، بھائی اپنے بھائی عباس کو آپ نے قرآن پڑھایا تو کیا نام ہے آنکھ میں آنسو نہ تھے، قاسم کو کیا نام ہے قرآن پڑھایا تو آنکھ میں آنسو نہ تھے۔ اے بابا جان آپ کے آنکھ میں کیوں آنسو ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ امام پاک فرماتے ہیں بچی قرآن کی ابتدا تو میں کرا رہا ہوں، قرآن کی امتحان کون کرائے گا؟ اے بیٹی سورہ فاتحہ تو میں پڑھا رہا ہوں، سورہ ناس کون پڑھائے گا؟ اے بیٹی اس وقت تیرا بابا نہ ہوگا، ظالم تیرے بابا کو شہید کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے چھوٹی سی بچی سکینہ کو رخصت کیا ہے۔ اے میرے پیارو تاریخ کیوں بتا رہی ہے؟ فجر کا وقت آیا، امام پاک نے اپنے خیمے والوں کو بیدار کیا، اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، نماز فجر ادا کرو۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں امام پاک نے جنگ کی ترتیب دینا شروع کر دیا، یعنی وہ صفحے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں میرے پیارو غازی عباس کو کھڑا کیا، حضرت علی اکبر کو کھڑا کر دیا، مسلم بن اوسجا کو کھڑا کر دیا، زہیر بن قیس کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح ترتیب دے دی۔ ترتیب دینے کے بعد میں لے جا کے سارے پھولوں کو میدان میں سجا دیا، سارے پھولوں کو میدان میں سجا دیا۔ ادھر فوج آ گئی۔ فوج آنے کے بعد میں جو سب سے پہلا تیر جس نے چلایا تھا عمر ابن سعد، یہ بدبخت چلایا تھا۔
ये तीर फेंका और कहने लगा, ए लोगों यजीदियों के दरबार में गवाही देना, मैंने पहला तीर हुसैन इब्ने अली के ऊपर चलाया है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए और एक लंबा खुतबा देते हैं। आप इरशाद फरमाते, ए यजीदियों बताओ मैं कौन हूँ। यजीदियों ने कहा कि आप शहजादे रसूल हैं, नबी की औलाद हैं, अली के बेटे हैं। इमाम पाक ने फरमाया, बताओ क्या मैंने कभी झूठ बोला? करबला के मैदान में आवाज आई नहीं। इमाम पाक फरमाते, क्या मैंने कभी नमाज को छोड़ा? करबला के मैदान में आवाज गूंजी नहीं। इमाम पाक फरमाते, क्या मैंने कभी शराब को हाथ लगाया? करबला के मैदान में आवाज आई नहीं। इमाम पाक ने फरमाया, क्या मैं शरीयत का बागी हूँ? करबला के मैदान में आवाज आई नहीं। इमाम पाक ने फरमाया, क्या मैं कभी ज़ना के करीब गया? करबला के मैदान में आवाज गूंजी नहीं। इमाम पाक फरमाते, क्या मैंने शरीयत में तब्दील की? करबला के मैदान में आवाज गूंजी नहीं। तो इमाम पाक ने फरमाया, ए लोगों बताओ फिर मुझको घेर घार कर तलवारों को छाव में मारने और मरने की धमकी क्यों दी जा रही है? मुझे पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? यजीदियों ने कहा नहीं। इमाम पाक फरमाते, बताओ मुझ पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? ए मेरे प्यारे, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, या शहजादे रसूल आखिर इन यजीदियों से क्यों आप सवाल कर रहे थे? इमाम पाक फरमाते हैं, अगर ये सवाल मेरे अलावा कौन करता और ये सवाल किसके लिए होता? इमाम पाक ने फरमाया, ए लोगों, जब कल का हिंदू कल का मुसलमान मेरी हिस्ट्री पढ़े तो समझ जाए, इमाम पाक को उन लोगों ने कत्ल किया था जो उनके नाना जान का कलमा पढ़ते थे। इमाम पाक को उन लोगों ने कत्ल किया था जो उनके नाना जान के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनके नाना जान को नबी मानते थे। इमाम पाक फरमाते हैं, अगर मैं इन सवाल को ना पूछता तो इसका सवाल कौन पूछता? मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया था, ये मेरे प्यारे नाना जान जब कुहे सफा पर खड़े हुए थे, आपने अपने रिसालत की गवाही दी। आप कुहे सफा पर खड़े होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, या माशरल कुरैश, मेरे कुरैश के लोग जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा कि आप नबी आबरूज जमा है। आप इरशाद फरमाते, मैं नबी हूँ। मैंने कभी झूठ बोला? तो लोगों ने कहा नहीं। आप फरमाते हैं, क्या नाम है, क्या मैं शरीयत में तब्दील किया? लोगों ने कहा नहीं। अब मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, मेरे आका ने सारे उनसे जमानत लेने के बाद में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब मुझे नबी मानते तो मेरा फरमान भी सुनो, अल्लाह एक है, उसके बारगाह में झुक जाओ। बुतों का पूजा करना छोड़ दो। इतना सुनना था, सब लोग भागने लगे थे, सब लोग मारने लगे, वहां से भागने लगे थे। उसी में एक बच्चा बैठा हुआ था जो बड़ा दुबला पतला था। वो खड़ा होने लगा और कहने लगा, अरे नबी आखिरुज़ ज़मान, ऐ नबी प्यारे आका, मैं आपके साथ हूँ दूंगा। आप इरशाद फरमाते, ए बेटे इनका, आप इरशाद फरमाते, मसीद जवाब देने लगे, ए बेटे इनका काफिला खलवत से जलवत तक जाता है, साथ दोगे? कहा हाँ साथ देंगे। कहा ए बेटा इनका बिस्तरा कभी खत्म मौत का बिस्तरा होता है, क्या सोओगे? और उसके बाद में आप फरमाते हैं हाँ। आप फरमाने लगे, मेरा काफिला मदीना मुनव्वरा से काबा तक जाता है, क्या साथ दोगे? कहा हाँ साथ देंगे। कहा अगर बच्चों की कुर्बानी की बात आए तो साथ दोगे? कहा हाँ साथ देंगे। कहा ना तो ना करोगे? कहा ना करेंगे। वो कौन कहते अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, किसी ना को किसी हाँ को ना में तब्दील नहीं कर रहे हैं। आप जब सारी बात आई है तो जगह काम आए हैं, और जब औलाद की बात आई है तो अपने बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में उतार दिया। नबी से वादा किए थे, हाँ करूंगा ना करूंगा, इनकार ना करूंगा। आज अली का बेटा, आज हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में खड़ा है और कहने लगा, ए लोगों, मेरे नाना जान ने कहा था, मेरे नाना जान ने फरमाया था, बेटा जब दीन में फसाद होने लगे तो ये बेटा सबसे पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ले लेना, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि लोग क्या नाम है मेरे ऊपर जुल्म किए थे, कौन लोग तुमको जुल्म किए थे, तुमने शहीद किया था। ये मेरे प्यारों को तारीख बता रही है। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, ए लोगों मुझे पहचान लो, पानी उस पर बंद किया जाए जो शरीयत का बागी हो, खाना उस पर बंद किया जाए जो शरीयत का बागी हो, जो दीन का बागी हो। मैंने नाना जान के कलमे को नहीं छोड़ा है, आखिर मुझको ऊपर पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? यजीदी कोई जवाब ना दे रहे थे। अब बड़ी गौर से मेरी बात को समाप्त करना मेरे प्यारों। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते, हल मिन मुगीसी युगीसना, अल्लाह अल्लाह है कोई जो मेरी मदद फरमाए, है कोई जो मेरे साथ में आए। मेरे प्यारों अब सवाल ये पैदा होता
ہوتا ہے؟ یہ سوال یہ فطرت نے آواز دیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ آج بھرے مجمع میں یہ عارف رضا قادری آقا کے غلام کے قدموں کا، آقا حسین کے قدموں کا یہ غلام بھرے مجمع میں سوال کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا حسین، آخر یزیدیوں سے کیوں کہہ رہے تھے حل من موگے سے یوگے سنا؟ اگر آپ کو مدد چاہیے تھا تو یزید مدد کرنے کے لیے تیار تھا، آپ اس سے مدد لے لیتے۔ آقا حسین کا جواب دل کے تختی پر نوٹ کرو سننے مسلمان بھائیو، آقا حسین نے ارشاد فرمایا تھا حل من موگے سے یوگے سنا، آؤ میری مدد کرو۔ اس کا مطلب کیا مطلب یہ تھا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو دین میں تعاون میں میری مدد کرے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو یزید کے جیل میں جانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو یزید کا نیزہ اپنے سینے پہ لینے میں میری مدد کرے؟ اس نے سمجھا، جس نے گھیر گھار کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں روکا تھا، اس نے سمجھا، حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ یزیدیوں نے سمجھا حر بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، ابھی حسین کو بلا کر لائے گا، حسین ہماری بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ حر دوڑتا ہوا گھوڑے سے دوڑا ہے، آنکھوں میں چمک لے کر رو کر کہتا ہے آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے، اے آقا حسین آپ نے بلایا ہے تو میں جہنم سے نکل کر جنت کی دہلیز کے کو چومنے آ گیا ہوں، اے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو گھیر گھار کر کربلا کے میدان میں لایا، میرے وجہ سے آپ کا پانی بند ہوا ہے، میرے وجہ سے آپ کا کھانا بند ہوا ہے، آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ امام پاک فرماتے حر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اے میرے پیارو، اگر امام پاک کہتے تھے اے حر میں نے کچھ کو معاف کیا تو حر احساس کمتری کا شکار بن جاتا۔ نبی کے اولاد کسی کو احساس کمتری کا شکار نہیں بناتے، وہ محبت کی دولت کربلا کے میدان میں بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیا، یہ جب حر واپس پڑھتے ہیں تو یہی نعرہ بلند کرتے ہیں حل من موگے سے یوگے سنا، اللہ اللہ، ہے کوئی جو امام حسین کی مدد فرمائے، ہے کوئی جو امام حسین کے ساتھ میں آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے جناب حر یہ بتاؤ، جب آقا حسین نے بلایا تھا تو تم آ گئے تھے، لیکن ابھی یزیدیوں سے کیوں کہہ رہے ہو ہے کوئی جو امام حسین کی مدد فرمائے، ہے کوئی جو امام حسین کے ساتھ میں آئے؟ تو وہ کہتے اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو، میں یزید کا غلام نہیں ہوں، حسین کا وفادار سپاہی بن کر بول رہا ہوں۔ اگر تم نے اپنی آخرت کو دیکھ لیا ہے تو پلٹ آؤ، ورنہ کریم ابن کریم شہید ابن شہید کے تیور بھی ملاحظہ کرتے چلو۔ یہ کہتے آؤ میری مدد کرو، آؤ میرے ساتھ میں آؤ۔ اے میرے پیارو، المختصر لوگ سونے لگے، اس لیے میرے پیارو اب میں شہادتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کو بیدار کر لیا جائے، چند منٹ اور برداشت کریں۔ ابھی کیا نام ہے، ٹائم 12:49 ہو رہے ہیں، سارے لوگوں کو بیدار کر لیا جائے۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی بیدار ہے نا مولانا محمد بارک وسلم مولانا صلی اللہ تعالی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں سارے لوگ بیدار ہیں نا؟ ہاں اے میرے پیارو، امام علی مقام رضی اللہ تعالی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بس اب تقریر سماعت کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیا نام ہے اعلان کیا، اتنے میں ایک خاتون آئی، اس کے بعد میں کیا نام ہے ایک جوان تھا، وہ لے کر قدموں میں پہنچی، رو کر کہنے لگی یا شہزادے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، آقا یک اللہ نام کا بیٹا ہے، آقا اس کے شادی کے 17 دن ہوئے ہیں، میں نے سنا کہ آپ کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، آقا حسین میں اپنے لال کو قسم دے کر لائی ہوں کہ آقا حسین کے قدموں پر تجھے قربان ہونا ہے، شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے، آقا میں اپنے بیٹے کے اوپر قسم دے کر لائی ہوں، آقا 17 ہی دن کا یہ دلہا بننے ہوئے ان کے دن گزرے ہیں۔ اس کے بعد میں میرے پیارو، پھر اس کے بعد میں تاریخ کیوں بتا رہی ہے، یہ جوان آگے بڑھنے کے بعد میں یزیدیوں سے جنگ کرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی دیر میں جوان شہید ہو گیا، پھر نکلنے کے بعد میں یزیدیوں کو للکارا حل من مبارز، اے یزیدیوں آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، ہے کسی کے اندر ہمت، ہے کسی کے اندر طاقت، آؤ مجھ سے مقابلہ
नہ करो, मुझसे लड़ो। ए मेरे प्यारो, आखिरी यहीं पर जंग की इब्तिदा हो जाती है। अब हुर पर तीर और नेजों की बारिश होना शुरू हो गई है। इतने तीर चले हैं, इतने नेजे चले हैं, लेकिन हुर भी बहादुर इंसान थे, जिधर से जाते सबको फना फिन्नार करते जाते। काजल मूली की तरह तलवार चमकती तो काटते हुए जा रहे थे, लेकिन एक शेर पर 72 कुत्ते घेर ले तो बताओ किस किस को मारेगा, किस किस को काटेगा। मर्जी मौला मसीहत इलाही यूं हुई, इतने तीर चले हैं, थोड़ी ही देर में फिर शहीद हो जाते हैं। फिर अपने आका के कदमों पे शहीद होने लगे। हुर ने आवाज दिया, ए आका हुसैन, हुसैन तशरीफ लाइए, हुर दुनिया से जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बाहर आते क्या देखते, हुर की शहादत हो गई है। हुर ने आंखें बंद कर ली है। आपने उनका लाशा अपने गोद में उठाया, खेमे की जानिब लेकर चलने लगे। आशिकाने मुस्तफा, आपका इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया। आशिकाने मुस्तफा, आपका इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया। अहले बेटे मुस्तफा, यहीं से आपका इम्तिहान शुरू हो गया। अली अकबर तड़प कर आए, कहने लगे बाबा जान का हम हक पर नहीं है। कहते बेटा हम हक पर हैं, हक हमारे साथ है। ए बेटा हम हक पर हैं, अगर हम न हक पर होंगे तो कौन हक पर होगा। अली अकबर कहने लगे बाबा जान, ये तलवारों के छांव में मारने और मरने की धमकी क्यों दी जा रही है। बाबा जान, आखिर तलवारों के छांव में घेर घाल कर मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। आप फरमाने लगे बेटा तलवारें तो चलेंगी, बेटा गर्दनें तो कटेंगी, लेकिन ये बेटा जीत हमारी ही होगी, परचम हमारा ही बुलंद होगा। तो मेरे कारों की तारीख क्यों बता रही है। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में आए कि आपके भतीजे से कहने लगे चचा जान मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए, चचा जान मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में आए। आप आने के बाद इरशाद फरमाते हैं यजीदियो आओ आओ मुझसे मुकाबिला करो, आओ मुझसे जंग करो। है किसी के अंदर हिम्मत है, किसी की माँ ने दूध पिलाकर भेजा है, आओ मेरे मुकाबले में आओ। इतना सुनना था जो आपके जंग में आया था। अरे जग नाम का एक पहलवान था, बड़ा बहादुर पहलवान था। वो अकेले नहीं आया था, 4 बेटों को साथ में लेकर आया था। लोगों ने कहा जाओ इससे मुकाबला करो। अरज़क कहने लगा मैं बच्चे से मुकाबला नहीं करता हूँ, बच्चे के मुकाबले में जाना मैं तौहीन समझता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। लोगों ने कहा अरे इस हाशमी बहादुर को तुमने देखा ही नहीं। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता हूँ, अलबत्ता मेरे 4 बेटे हैं, किसी एक को भेज देता हूँ, उसका सर कलम करके लाकर दे देगा। और जब ने अपने बड़े बेटे को ललकारा, उसका बड़ा बेटा हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए डींगे मारता हुआ कासिम के पास में आया। लेकिन बाहर शेर थोड़ी ही देर में नेजे से ऐसा जबरदस्त वार करते हैं, इसका बेटा खून में लथपथ हो जाता है। उसके बाद में मेरे प्यारों, और जब ने अपने दूसरे बेटे को ललकारा, आप कहते हैं इसके तलवार को छीन लेते हैं। और जब ने अपने दूसरे बेटे को ललकारा, इसका दूसरा बेटा हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए कासिम के पास आया। आने के बाद में मेरे प्यारों, नेज़े से वार करना चाहा, उसने नेज़ा मारा, आपने नेज़े का कट किया, नेज़ा कटा। उसके बाद में कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में तलवार से ऐसा जबरदस्त वार कर दिया, ऐसा जबरदस्त वार करते हैं उसका गर्दन कट के गेट की तरह टूट जाता है। और जब ने अपने तीसरे बेटे को ललकारा, कासिम ने उसे भी फना फिन्नार कर दिया। और जब ने चौथे बेटे को ललकारा, उसका चौथा बेटा आया। आने के बाद में आपको गाली देना शुरू कर दिया। कासिम इरशाद फरमाने लगे जब के बेटे, मैं तेरे गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, तेरा सर काट कर तेरे भाइयों के साथ में जहन्नम में भेज देता हूँ। ये कहते कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार से ऐसा जबरदस्त वार किया कि थोड़ी ही देर में उसकी लाश तड़प जाती है। अरज़क ने देखा मेरे 4 बेटे कर गए हैं। जो अपनी तौहीन समझ रहा था, अब ये मैदान करबला में उतरा, और उतरने के बाद में जब कासिम से जंग करने के लिए मैदान में उतरा, सामने आकर खड़ा हो गया, कहने लगा ए बच्चे तू मुझे जानता नहीं है, मैं अरज़क हूँ। अरज़क मेरे सामने से बड़े बड़े पहलवान भेड़ और बकरी की तरह भाग जाया करते हैं, जिस मैदान में जाता हूँ लोग कांप जाया करते हैं। बता जब मेरी शमशीर चलती है तो बहुत तकलीफ लोगों को पड़ती है, लोग चकनाचूर हो जाते हैं। कासिम ने इरशाद फरमाया
फरमाया ए अर्ज़त तुझे मालूम नहीं है, तुमने हाशमी बहादुरों को देखा ही नहीं, तेरी ताकत मेरे सामने मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखती है। तुमने कहाँ मेरे दादा जान को देखा है, कहाँ मेरे लोगों को देखा है, कहाँ मेरे अहले बैत के लोगों को देखा है। जिस मैदान में होते करो एक होते या हजार होते तो लड़ जाया करते थे, गलबा हासिल हुआ करता था। मेरे बाबा की वो शान है, मेरे दादाओं की वो शान है, जोड़ करीम की शान है। जब आप मैदान में होते थे, मैदान का सगा सगा पुकार के कहता था शेरे मरदा शेरे बेटा कुव्वते परवरदिगार ला फता सैफिल्लाह ला सैफा जुल्फ़िकार। कहा तुमने कहा देखा बड़े बड़े हाशमी बहादुरों को, आजा मुकाबले में आजा। अर्ज़ आया उसके बाद में नेज़े से वार कर दिया। आपने नेज़े का वार किया इसके ऊपर भी, लेकिन नेज़ा दोनों का खाली नहीं रह गया। अर्ज़ ने तलवार खींच ली, कासिम ने भी तलवार निकाल ली। अर्ज़ कहने लगा ओ बच्चे कहाँ मेरे बेटे की तलवार पा गए हो। आप इरशाद फरमाने लगे ये तेरा बेटा मुझे तोहफे में देकर गया है, तेरा भी सरकार के तेरे बेटों के साथ जहन्नम में भेज दूं। इतना कहना था, गुस्से से अर्ज़ आग बबूला हो गया, आप पर वार करना चाहता था। आप इरशाद फरमाते हैं अर्ज़ मैं तुझको बहुत दाना बीना समझता था, बहुत होशियार समझता था, तो बुद्धू है, तुझे तो घोड़े का जीन कसने का सलीका भी नहीं पता है। इधर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रेतीली जमीन पर सजदा रेज़ हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं मेरे पाक परवरदिगार आलम सबसे बड़ा पहलवान मेरे बेटे के मुकाबले में आया है, और मेरे मौला मेरे कासिम के जीत दे दे, मौला मेरे कासिम की हिफाजत फरमाना। उसके बाद में अर्ज़ ने अपने घोड़े की तरफ मुड़कर देखा, हज़रत कासिम ने बड़ा अच्छा मौका उठाया और उठाने के बाद आगे बढ़े और तलवार से ऐसा जबरदस्त वार किया, ऐसा जबरदस्त वार किया, उसका सर कटके गेट की तरह दूर चला जाता है। कासिम इरशाद फरमाते हैं ऐ चचा जान सर सजदे से उठा लीजिए, चचा जान अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। उधर आपकी दुआ कबूल हुई है, उधर जालिम की लाश तड़प रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, जश्ने शहीद आज़म, नारे तकबीर। सर सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल करी। उधर आपकी दुआ कबूल हुई, उधर जालिम की लाश खून में तड़प रही है। जब लोगों ने देखा एक हाशमी बहादुर ने हज़रत कासिम ने तरोतना अर्ज़ को काट डाला, उसके चार बेटे को काट डाला। उन लोगों ने कहा अगर यकायक जाओगे तो याद रखो ये पूरे मैदान को साफ कर देगा, पूरे लोगों को खत्म कर देगा, काबू पाना दुश्वार हो जाएगा। मेरे प्यारे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर अब एक साथ तीर और नेज़ों की बारिश होना शुरू हो गई। हज़रत कासिम पलट कर आए, कहने लगे चचा जान अलविदाई सलाम लीजिए, चचा जान अलविदाई सलाम लीजिए, बच्चा 2 मिनट मेरे पास और रह गए हैं, मैं नाना जान के कौसर पर जाने वाला हूँ। चचा जान प्यास की शिद्दत है, आप फरमाते हैं बेटा कासिम थोड़ा सब्र और करो। आप हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरे हैं, हल्मे मुबारिश कहा है। ए मेरे प्यारो हज़रत कासिम पर तीर और नेज़ों की बारिश होना शुरू हो गई। इतने तीर चले हैं, इतने तीर चले हैं कि आपका घोड़ा भी खून में लथपथ हो जाता है, आपका सवारी भी खून में लथपथ हो जाता है। ए मेरे प्यारो इतना नेज़ा लगा था, घोड़ा चलना दुश्वार हो गया था। इमाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरे गाजी क्या यजीदियों से गिर गया, क्या इनसे जंग नहीं करेगा? वो रोकर कहने लगा ए कासिम मैं हाशमी बहादुर का गुलाम हूँ, मैं हाशमी जवानों का गुलाम हूँ, मैं कैसे इनसे डर सकता हूँ, कैसे हट सकता हूँ? लेकिन मेरी पांव पर नजरें डालें, इतना नेज़ा लग चुका है, इतनी तीरें लग चुकी हैं जो पढ़ने नहीं दे रही हैं। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं और जालिमों के मुकाबले में आना शुरू कर देते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, जिधर से आपकी तलवार चलती सबको गाजर मोली की तरह काट देते। थोड़ी ही देर में मैदान में आवाज गूंजी अरे हुसैन कासिम के जनाजे को उठा लो, अरे हुसैन मैंने कासिम को शहीद कर दिया, इनको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आए, क्या देखते हैं हज़रत कासिम को नेज़ा लग चुका है, कासिम जमीन पर आ चुके हैं। आपने उनके जनाजे को गोद में उठाया है, हज़रत कासिम ने आंखें खोल के कहते हैं चचा जान अलविदाई सलाम लीजिए, चचा जान अलविदाई सलाम लीजिए।
दीजिए। कासिम ने ये कहकर दम तोड़ दी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके लाशो शरीफ को उठाते हैं, गोद में लेते हैं, खेमे में ले जाकर के रख देते हैं। अहले बैत मुस्तफा आपका इम्तिहान शुरू हो चुका है। आशिकारे मुस्तफा आपका इम्तिहान ही से शुरू हो गया। अली अकबर तरफ कराए, कहने लगे बाबा जान मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए, बाबा जान मैदान में जंग करने की इजाजत दे दी जाए। इतने में वाली सकीना तरफ करा गई, देखा गाजी अब्बास बैठे हैं, कहने लगी चचा जान अब्बास आप मुझको पानी पिलाया करते थे, ऐ चचा जान अब्बास आप मुझको झूला झुलाया करते थे, ऐ चचा जान अब्बास अब पानी पिला दीजिए। भैया असगर भी रो रहे हैं। ए मेरे प्यारो प्यास से का आलम ये हो चुका था, 3 दिन तक नबी के खानदान तक पानी रोक दिया था। वाली सकीना आई, कहने लगे चचा जान पानी पीना है। ए मेरे प्यारो छोटी बच्ची अगर आपके घर में मौजूद है, अगर सवाल कर दे बाबा जान मुझे ये चीज नहीं मिला है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। आप सीने से लगा लेते हो, ले जाकर के दुकान पे खड़ा कर देते हो, जेब में पैसे हो या ना हो, कहते हो मेरी बेटी को सामान दे दे, मेरी बेटी का दिल न टूटने पाए। ये सकीना आई, कहने लगी चचा जान प्यास की शिद्दत है, चचा जान पानी पिला दीजिए। कासिम रज़ी अल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सकाए सकीना यानी मस्कीज़े को टांगा, और टांगने के बाद में घोड़े पर सवार हुए। इधर अली असगर रो रहे थे, अली असगर रो रहे थे। सकीना कहने लगी है भाई अली असगर आंसू ना बहो, देखो गए चचा जान पानी ही देने के लिए, अभी पानी लेकर आ रहे हैं। ये सकीना खेमे के अंदर छोटा सा प्याला लेकर खड़ी है कि चचा जान पानी लेकर आएंगे। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप मेरे फुरात के अंदर घोड़े को डाल दिया, मस्कीज़े को भरा और सोचा लाओ थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आपने पानी उठाया और जैसे होठ के करीब ले गए, प्यासी भतीजी के प्यास ने तड़पा दिया, सकीना की प्यास ने तड़पा दिया। जहाँ सकीना तड़प रही है, जहाँ प्यासी भतीजी तड़प रही है, आपने पानी को अंदर छोड़ दिया, डाल दिया फुरात के अंदर। घोड़े पर खड़े तैयार हो गए, घोड़े पर सवार हो गए। यजीदियों की आवाज बोली करबला के मैदान में, इन्हें घेर घार कर ऐसा छलनी कर दिया जाए, ऐसा छलनी कर दिया जाए, हर पानी का कतरा खून के शक्ल में बह जाए। अल्लाह अकबर। सकाए सकीना यानी मस्कीज़े पर तीर और नेज़ों की बारिश होने लगी है। बचते बचाते एक शकी के हाथ से दाया बाजू करता है, पलटकर मस्कीज़ा बाएं हाथ से संभाल लेते हैं, लेकिन बाया बाजू भी कट जाता है। आपने सकाए सकीना यानी मस्कीज़े को दांतों के अंदर छुपा दिया। ए मेरे प्यारो एक जालिम ने नेज़े से वार कर दिया, उस मस्कीज़े पे नेज़ा लगा और छेदता हुआ बाहर आने लगा। उसके बाद में आप इरशाद फरमाते हैं, ए भैया जान अब्बास की खबर लो, अब्बास दुनिया से जा रहे हैं। ए भैया जान अब्बास की खबर लो, अब्बास जा रहे हैं। ए मेरे प्यारे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं, अब्बास जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। इमाम अली मकाम दौड़ लगा देते हैं और उसके बाद में आपके जनाजे को गोद में उठाया है और इरशाद फरमाते हैं मेरी कमर टूट गई। ए मेरे प्यारे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें खोली और इरशाद फरमाते हैं भतीजी तेरे उस प्यास को सलाम जिसके लिए तेरे चचा पानी न पिला सके। ऐ सकीना भतीजी तेरे उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपने लहू दे दी है। ऐ सकीना तेरे उस प्यास को सलाम जिसके लिए तेरे चचा ने अपना खून दे दिया। ऐ भतीजी सब्र करना, तेरा चचा जान पानी न लाएगा। ऐ मेरे प्यारे जब नेज़ा लगा था सकीना कटोरा लेकर खेमे के अंदर देख रही थी। वाली सकीना कटोरा लेकर खेमे के अंदर देख रही थी और भैया असगर से कह रहे थे ए भैया चुप जाओ, देखो चचा जान पानी लेकर आ रहे हैं। जैसे नेज़े का फल लगा है पानी का फव्वारा जारी हुआ है, सकीना के हाथ से कटोरा छूट जाता है। सकीना रो कर कहती भैया असगर अब जितना रोना है रो ले, अब पानी की आग छोड़ दे, दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए। ए भैया अली असगर पानी के आग को छोड़, दुआ कर मेरा चचा जान वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने अब्बास को गोद में लिया। उसके बाद में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेमे की जानिब लेकर आने लगे और उसके बाद में अब्बास ने कहा, अब्बास ने कहा सुने सुने या शहजादे रसूल मेरा जनाजा मेरी बेटी सकीना के करीब ना लेकर जाए, वरना मेरी बेटी सकीना तड़प जाएगी देखकर कि मैंने चचा जान को पानी के लिए भेजा था। अल्लाह अकबर। इमाम
علی مقام چھپاتے یہ جنازہ لے کر آئے ہیں کہ عباس کا سکینہ کی نظر پڑی ہے. اس کے بعد امام پاک نے فرمایا او سکینہ یہ تیرا چچا آیا ہے, اے سکینہ یہ تیرا چچا آیا ہے, جو ہاتھ لے کر گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کر آیا ہے, جو ہاتھ لے کر گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کر آیا ہے. لیکن اے سکینہ تیرے چچا نے وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑ کر آیا ہے, بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑ کر آیا ہے. سکینہ مظلوم بھتیجی آ کر سرہانے بیٹھ جاتی ہے, یہ بھتیجی آ کر سرہانے بیٹھ جاتی ہے, سر کو ہلاتی ہے. تھوڑی دیر بعد کہتی چچا جان آنکھیں کھول دو, چچا جان آنکھیں کھول دو اور کہہ دو اے بھتیجی میں تجھ سے روڑ کر نہیں گیا ہوں. چچا جان آنکھیں کھول دو اور کہہ دو بھتیجی میں تجھ سے خوش ہو کر گیا ہوں. چچا جان آنکھیں کھول دو مجھ سے باتیں کر لو, دیکھو تمہاری بھتیجی سرہانے بیٹھی ہے. سکینہ بار بار سر کو ہلاتے ہیں, بار بار سر کو ہلاتے ہیں. چچا جان کو بار بار آواز دیتے ہیں لیکن چچا جان تو رخصت ہو چکے تھے. سکینہ سے نصیحت کہہ رہی تھی اے بچی اے بالی سکینہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے, جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا فیصلہ ہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے لیکن وہ آمنے سامنے نہیں آیا کرتا ہے. سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم. سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم. پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی, پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی. یہ میرے پیاروں پھر اس کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا, ارشاد فرماتے ہیں سکینہ صبر کرو, سکینہ صبر کرو. پھر اس کے بعد میں محمد علی اکبر طلب پر آگے کہنے لگے بابا جان میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے, بابا جان میدان میں جانا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے اے بیٹا تمہاری پھوپھی نے تمہیں زینب نے پالا ہے, جاؤ ان سے اجازت لے لو. یہ بچہ پھوپھی کے قدموں میں آیا, رو کر کہنے لگا پھوپھی جان آپ کہتی ہاں میرے بیٹے. آپ کہنے لگے پھوپھی جان اجازت دے دیجیے. آپ زینب فرمانے لگی کس طرح تمہیں خون میں رنگ جانے کی اجازت دے دی جائے, کس طرح ظالموں کا خنجر تمہارے گلے پر چلنے کی اجازت دے دی جائے. آپ فرمانے لگے پھوپھی جان اجازت دے دیجیے. بھیگی پلکوں کے چھاؤں تلے, بھیگی پلکوں کے چھاؤں تلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کو تیار کیا. 18 سال قریل جوانی کا عالم ہے. جوان دولہا کربلا کے میدان میں اترے. اترنے کے بعد میں حل میں مبارز کا اعلان کیا اے یزیدیو آؤ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. یزیدیوں نے اپنے اپنے خنجر کو زمین پر رکھ دیا, یزیدیوں نے اپنے اپنے خنجر کو زمین پر رکھ دیا. اس کے بعد میں شمر دل جو سب پوچھنے لگا بتاؤ آخر ان سے جنگ کیوں نہیں کر رہے, ان سے لڑائی کیوں نہیں کر رہے ہو. وہ کہنے لگے کہ بہت حد ہو گیا, ہم سب سے جنگ کریں گے لیکن اپنے نبی سے ہرگز جنگ نہ کریں گے. وہ کہنے لگا یہاں کہاں تمہیں نبی نظر آ رہے ہیں. کہا یہ کون میدان میں کھڑے ہیں. کہا یہ نبی نہیں بلکہ شبیہ نبی ہے, علی اکبر ہیں. سارے ان لوگوں نے نیزہ اٹھا لیا ہے, نیزہ اٹھا لیا. پھر جنگ کی ابتدا ہونے لگی ہے. کہتے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑتے جاتے, ان کے لوگوں کے قافلے کے درمیان گھستے جاتے. آپ کی تلوار چمکتی میدان میں تو ایسا لگ رہا تھا ان کے ساتھ میں کئی لوگ تلوار چلا رہے ہیں. اے میرے پیارو آپ نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے, کہنے لگے چچا جان الوداعی سلام لیجیے. اے چچا جان اب ظلم و ستم کے بادل آنے والے ہیں. اے چچا جان اب ظلم و ستم کے بادل قریب آنے والے ہیں. اے چچا جان اب فاطمہ کا چادر ٹکڑا ٹکڑا ہونے والا ہے, زینب کی آنچل پھاٹنے والی ہے. چچا جان الوداعی سلام لیجیے. آپ کہتے چچا جان اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو کام ہو جاتا. آپ فرمانے لگے اے بیٹے صبر کرو, تھوڑا دیر اور تھوڑی دیر اور انتظار کرو. تمہارے نانا جان حوض کوثر پر کوثر کا پیالہ لے کر انتظار کر رہے ہیں. اے بیٹے تھوڑا اور صبر کرو. علی اکبر میدان میں آ گئے, جنگ کرنے لگے. یزیدیوں سے لڑتے رہے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی ہی دیر میں کربلا کے میدان میں آواز پہنچی اے حسین 18 سال قریل نوجوان کی لاش کو اٹھاؤ. اے حسین 18 سال قریل کی نوجوان کی لاش کو اٹھاؤ. میں نے زینب کے آنچل کو تار تار کر دیا ہے, فاطمہ کی چادر کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے. دیکھو تمہارا بیٹا خون
में नकबत है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के बाहर तशरीफ लाते हैं, क्या देखते हैं अली अकबर को नेज़ा लग चुका है, आप जमीन पर गिर चुके हैं। ए मेरे प्यारों, जैसे बाबा जान को देखा अली अकबर ने आंखें खोल दी, 18 साल के बूढ़े ने आंखें खोली है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा लाओ नेज़ा बाहर निकाला जाए, नेज़ा बाहर निकाला जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेज़ा बाहर निकालने लगे तो नेज़े के साथ साथ बेटे का तना हुआ दिल भी बाहर आने लगा, बेटे का तना हुआ दिल भी बाहर आने लगा। हुसैन, हिम्मत है बेटे का नेज़ा निकालने की। ऐ हुसैन, यजीदियों ने कहा हुसैन देखना है कैसे अपने बेटे का नेज़ा निकाल ले, देखो तुम्हारे बेटे का दिल भी बाहर आ रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने फरमाया था हम दीन के लिए सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन दीन पर आँच न दे आने देंगे। 18 साल जवान बेटे को दे दिया है, नेज़ा भी निकाल लूंगा। अल्लाह अकबर, जवाब नेज़ा निकालने थे अली अकबर कहने लगे बाबा जान बहुत दर्द हो रहा है, बाबा जान बहुत दर्द हो रहा है। आप फरमाते बेटा सब्र करो, तुम्हारे नाना जान सारे मर्ज की दवा है, नाना जान हर इलाज की दवा है, नाना जान की तसल्ली भी है मोहब्बत नाना जान में। अली अकबर की आंखें की पलकें भीग गई है, आंखों की पलकें भीग गई हैं। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कितनी हिम्मत दी थी, कितना हौसला अता कर दिया था। जनाजे पे जनाजा लेकर आ रहे हैं, जनाजे पे जनाजा लेकर उठा कर आप सुबह से ये काम कर रहे हैं। आपने अली अकबर के जनाजे को उठाया है। अली अकबर ने आंखें खोल दी, कहने लगे चचा जान अलविदाई सलाम लीजिए, अकबर दुनिया से जा रहे हैं, अकबर दुनिया से जा रहे हैं। ए मेरे प्यारो, फिर उसके बाद में अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। अब मोहम्मद शहीद हो चुके हैं। अब मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आने की तैयारी बना रहे थे, करबला के मैदान में आने की तैयारी बना रहे थे। इतने में अली असगर को पेश किया गया, इतने में अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहन ज़ैनब लेकर आ गई और कहने लगे भैया जान ये 6 माह का बच्चा है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, ऐसा करें ना यजीदियों के पास में लेकर जाएं और थोड़ा सा पानी की तलब कर लें, यजीदियों से जंग है। आप फरमाते हैं बहन हमें यजीदियों से उम्मीद नहीं है। शेरबानो ने भी कहा था कि मेरे सरकार ये बच्चे की प्यास देखी नहीं जा रही है, आप बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाइए, हो सकता हो ये उनके ऊपर कुछ रहम आ जाए, हो सकता हो बच्चे को पानी पिला दे। इमाम पाक ने फरमाया मुझे तो उम्मीद नहीं है, हाँ आप लोग कहते हैं तो मैं लेकर जाता हूँ। इमाम अली मकाम ने अली असगर को गोद में दिया, आपने गोसा दिया, लेकर चले। अली असगर बार बार खेमे को पलट कर देख रहे थे, अली अकबर बार बार खेमे को पलट कर देख रहे थे। आप यजीदियों के सामने लेकर पहुंच गए, आपका हुसैन यजीदियों के सामने पहुंच गए और इरशाद फरमाते हैं यजीदियों जंग हमने की है, लड़ाई हमने की है, लेकिन नन्हे अली असगर ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे को पानी पिला दो। ये देखो नन्हा सा बच्चा अपने हाथ को फैला रहा है, अपने होठ को हिला रहा है और कह रहा है जो मुझे पानी पिलाएगा मैं नाना जान से कौसर का जाम दिलाऊंगा, मैं नाना जान से कौसर पिलाऊंगा। ये मेरे प्यारो, उसके बाद में मेरा नाम का एक यजीद था, आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहने लगा हुसैन मैं इस बच्चे का प्यास ऐसा बुझा दूंगा कभी पानी न तलब करेगा, कभी पानी न मांगेगा। ये जालिम खून जहर में बुझा हुआ एक तीर निकाला और निकालने के बाद मखलूक में अली असगर का निशाना बनाया, बनाने के बाद में तीर छोड़ा, हल्के अली असगर के ऊपर ये तीर लगा है, खून का फव्वारा जारी हुआ, इमाम पाक के चुल्लू में आया, इमाम पाक के चुल्लू में आया। उसके बाद में इमाम पाक ने सोचा लाओ इस खून को जमीन पर डाल दिया जाए, जमीन कांप गई और कहने लगे आका हुसैन जमीन पर खून ना डालें वरना सुबह क़यामत तक अली असगर की खून लेने के बाद में कोई गल्ला में नहीं दे पाओगे, सुबह क़यामत पर इस पर कोई नाज न पैदा होगा, यहाँ पे लोग रहना दुश्वार हो जाएगा।
आका हुसैन मुझे माफ करे, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि असगर का खून ले लो, आका मुझे माफ कर दीजिए। आपने सोचा लाओ अपने बेटे का खून आसमान की जानिब उछा दो, आसमान से आवाज आती है आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, इस तरह खून ना आने दीजिए, वरना रब्बे जुल जलाल की कसम सुबह क़यामत तक जमीन पर बारिश ना होगी, अबे रहमत कभी ना होगी। आका हुसैन ने जब तोड़े के बाद को सुना, मेरे इमाम ने उस चुल्लू भर का खून अपने चेहरे पर मल लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे पास परवरदिगार आलम देख, मैं अपने बेटे के खून से वजू कर रहा हूँ, ए मेरे मौला इस वजू को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर की शहादत हो जाती है, अली असगर की शहादत हो जाती है। उसके बाद में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप छुपा कर लाकर ज़ैनब के हवाले करते हैं और कहते हैं बहन ये ले, 6 माह का शहीद भी आ गया है, 6 माह का शहीद भी आ गया है, यकायक सारे लोग शहीद हो चुके हैं। अब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में जाने की तैयारी में लगे थे, उनके साथ में इतने बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी थे। वो कहने लगे बाबा जान मुझे भी मैदान में उतार दिया जाए, ए बाबा जान मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। आप फरमाते नहीं ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार होकर तुम भी शहीद कर दिए जाओगे तो बताओ बार इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा, बताओ काफिले के साथ हमरा कौन बनेगा, कौन रहेगा, तुम्हें शहीद नहीं होना है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना इमामा उतारा, उतारने के बाद में मेरे प्यारे उनके सर पर बांधने के बाद में बोसा लिया, बोसा लेने के बाद में लिटा दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बढ़ता है प्यारे अहले बैत। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सुबह से एक के जनाजे को उठाकर ला रहे थे, आप थक चुके थे, आप जनाजा ढो कर। अब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आखिरी शहादत आपकी होने वाली है। अल्लाह अकबर इमाम पाक फरमाते हैं ऐ औरतों ज़ियारत कर लो, ए बहनों देख लो, ए बेटियों आखिरी ज़ियारत कर लो। अब इमाम अली मकाम की शहादत होने वाली है। अब मैं मैदान में जाना चाहता हूँ, आप मैदान के लिए रवा होते हैं सलाम आखिरी लेकर। उसके बाद में बहन ज़ैनब ने यूं कलाई को पकड़ा, उसके कलाई को पकड़ा, कहने लगी भैया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे बहन जो माँ से वादा करके आए थे, जब बाप से वादा किया तब बहन इसी वादे को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। अरे बहन मैं अब करबला पर मैदान में जा रहा हूँ। बहन ज़ैनब ने कलाई को पकड़ा, कहती है मेरे भैया जान, मेरे भाई तुम्हें ऐसे मैदान में नहीं जाना है। आप सबको दूल्हा बना कर भेज रहे थे करबला के मैदान में, कासिम को दूल्हा बनाकर भेजा था करबला के मैदान में, अली अकबर को दूल्हा बनाकर सजाकर भेजा था करबला के मैदान में। ए बाबा भाई जान आज तुम्हें दूल्हा कौन बनाएगा? आज तो सारे लोगों ने शहादत का दर्जा हासिल कर लिया, लेकिन मेरे भाई सुने फातिमा की बेटी जाग गई है, फातिमा की बेटी बेदार हो गई है, ज़ैनब जाग चुकी है। मेरे भाई ऐसे मैदान में नहीं जाने दोगे। मेरे भाई अगर सब लोग शहादत का दर्जा पा चुके हैं तो आपकी बहन जिंदा है। मेरे भाई मैं आपको दूल्हा बनाऊंगी, मेरे भाई मैं आपको शहादत का दूल्हा बनाकर भेजूंगे। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके लिबास को उतारा और उतारने के बाद में नाना जान के लिबास को पहनाया, जुब्बे को पहनाया, खुबा दिया और उसके बाद में सर पर नाना जान के इमामे को बांधा और बांधने के बाद में इमामे अली मकाम के सर पर अली करमल्लाहु वजहू करीम के जुल्फ़िकार को दिया, तलवार को दिया, जाफर सय्यार की ढाल को हाथ में दिया और उसके बाद में रुखसत करने लगे। इमाम अली मकाम जब निकले हैं उसके बाद में बहन ने एक पोटली खोली है, दुपट्टा निकाला है, रोकर कहने लगी है भैया इमाम हुसैन मैं जब मदीना से चली थी तो माँ की भी निशानी लेकर आई हो, ये पट्टी लेकर आई हो, तुम मैदान में जा रहे हो, शहादत का दूल्हा बनकर जा रहे हो, तो माँ की भी निशानी लेकर जाओ। आज बारात घर से निकलती है तो माँ का कपड़ा हाथ में होता है, माँ का साया सर पे होता है, माँ अपने लाडलों से प्यार करती है, लेकिन आज करबला के मैदान में न बाप है न माँ है। आज इमाम
علی مقام کے ساتھی بھی شہید ہو چکے ہیں. آج یہ شہادت کا دولہ کون بنائے؟ صبح سے لاش دینے والے پیارے حسین آج تجھ کو دلہن کون بنائے؟ آپ فرماتی ہے بھائی پریشان نہ ہو، تیری بہن زندہ ہے، اس کو دولہا بنائے گی. بہن نے دولہا بنایا ہے، تلوار دی ہے. اس کے بعد میں بہن نے پوٹلی کھولا، رونے لگے بھیا جان یہ ماں کا تحفہ ہے. بہن نے بازو پہ باندھا ہے. اس کے بعد میں میرے پیارے جب آپ چلنے لگے بہن نے کہا تھا، اب ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا ہے. اے میرے پیارے کہنے لگی اے بھیا جان جب نانا جان معراج میں جاتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام رکاب تھاما کرتے تھے. جب علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان میں جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے تو امام حسن رکاب تھاما کرتے تھے. اس کے بعد میں آپ کہنے لگی بھیا جان جب حسن جنگ میں جاتے تھے تو آپ رکاب تھاما کرتے تھے. اے حسن بھائی آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، آج کون تیری رکاب کو تھامے گا؟ آج تیری رکاب کو کون تھامے گا؟ لیکن بھیا جان تیری بہن زینب ہے، یہ رکاب تھامے گی. اس کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد میں بھائی کے پیشانے کو چوما ہے، ماتھے کو چوما ہے. بہن نے بھائی کے ماتھے پر بوسہ لیا اور بھائی نے بہن کے ہاتھ پر بوسہ لیا. بہن پوچھنے لگی بھیا جان آپ نے میرے ہاتھ پہ بوسہ کیوں لیا؟ آپ فرماتے بہن تو نے کیوں میرے گلے پر بوسہ لیا؟ بہن زینب کہنے لگی اے بھائی میری ماں نے کہا تھا بیٹی زینب تیرا بھائی امتحان گاہ میں ہوگا. اے بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ کو نہ چھوڑنا. اے میرے بھائی میں دیکھ رہی ہوں یہ ظالم کتا تلوار سے وار کرے گے، اسی گردن پہ تلوار چلے گی. میں آج بوسہ لے رہی ہوں لیکن اے میرے بھائی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم نے میرے ہاتھ کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب میں دیکھ رہا ہوں میرے شہادت کے بعد میں تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جائیں گے. ماں نے یہ بھی کہا تھا حسین بیٹا یہ زینب تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ میرے میں رہنا، اس کے ساتھ کو نہیں چھوڑنا ہے. اے میری پیاری بہن میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی جائیں گے. اس وقت تیرے بھائی کے جسم پر گھوڑے دوڑ کے چکے ہوں گے. ایک بہن زینب میری نظریں دیکھ رہی ہے، پھر تجھے تیرا چمن اجاڑا جائے گا. اس وقت تیرے بھائی کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے. ایک بہن میں آج اسی لیے بوسہ لے رہا ہوں. ماں نے کہا تھا حسین یہ تیری بہن زینب ہے، زینب تو اس کے ساتھ میرا رہا کرنا. اے میری بہن اسی لیے میں بوسہ لیا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نکلے ہیں ایک چیخ بلند ہوتی ہے، ایک چیخ کے اندر ہونے لگتی ہے، سارے لوگ رونے لگے ہیں. آپ ارشاد فرماتے بیویوں آخری سلام لے لو، بہنوں آخری سلام لے لو. فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. اے میرے پیاروں کی تاریخ یوں بتا رہی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے یزید تمہیں میں آخری موقع دیتا ہوں. تم نے میرے بیٹے کو قتل کر ڈالا، میرے بیٹے کو شہید کر ڈالا، میرے بھتیجوں کو شہید کر ڈالا، ننھے بچوں کو شہید کر ڈالا، میرے علی اصغر کو شہید کر ڈالا. تمہیں میں آخری موقع دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی نانا جان کے دین پر آ جاؤ. یزیدیوں نے کہا حسین تجھے یزید کے سامنے جھکنا ہوگا. امام حسین فرماتے ہیں اگر مجھے یزید کے ہاتھ میں بیعت دینی ہوتی تو علی اکبر کی جوانی نہ مٹا دیتا. اگر مجھے یزید کے ہاتھ میں بیعت دینی ہوتی تو قاسم جوار کے جوانی نہ مٹا دیتا. اگر مجھے میرے ہاتھ میں بیعت دینی ہوتی تو کٹے ہوئے بازو عباس نہ دیتے ہوتے. اگر مجھے میرے ہاتھ میں بیعت دینی ہوتی تو میں ننھے علی اصغر کو نہ کربلا کے میدان میں لٹا دیتا. اے میرے پیارو پھر اس کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت تمام کرنے کے بعد میں آپ نے جنگ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں آئے کہنے لگے بہن زینب میری سکینہ کو لایا جائے. میں اس کو دیکھا نہیں ہوں،
मैं बेचैन हो चुका हूँ। उसके बाद में ज़ैनब कहने लगी भैया जान सकीना तो बेहोश हो चुकी है, सारे जनाजे देख देख कर छोटी सी बच्ची बेहोश हो चुकी है, ताब न ला सकी सकीना बेहोश पड़ी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब गए, दामन का हवा देते हैं, वो छोटी सी बच्ची जाग जाती है, सकीना को होश आता है। बाबा जान को देखिए, बाबा जान सब धच कर दूल्हा बनकर जा रहे हैं, बेटी तोड़कर आती है, सीने से लिपट जाती है, रोकर कहने लगे बाबा जान सब लुट चुके हैं, आप मत जाइए। ए बाबा जान जालिमों ने मेरे भाई अली असगर को शहीद कर दिया, आप करबला के मैदान में न जाए। ए बाबा जान आप न जाए, अली अकबर की जवानी लुटा दी है। ए बाबा जान कूफी लोग आपको भी शहीद कर डालेंगे। ए बाबा जान आप करबला के मैदान में न जाए, ये जालिमा आपको शहीद कर देंगे। आपने इरशाद करना है बेटे अगर तेरी मोहब्बत में छोड़ देता हूँ तो दीन छूट जाएगा। ए बेटी मुझे इजाजत दे दे। ए मेरे प्यारो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारे लोगों को दर्स इबरत दे दिया। अपनी बहनों से कहा बहनों जब क्या नाम है दीन का सुहाग गुजरे तो अपने भाइयों को मैदान में उतार देना, उनका अपना सुहाग उजाड़ देना, दीन का सुहाग बचा लेना। बीबियों ने दर्स इबरत दिया दुनिया वालों को, बीबियों ने दर्स इबरत दिया कि जब ये मैदान हो, जब दीन की बात आ जाए तो अपने शोहरों को मैदान में उतार देना, अपना सुहाग उजाड़ देना, लेकिन दीन का सुहाग न उजड़ने देना। उसके बाद में बहनों ने इम्तिहान दिया, सकीना ने दस दिया है दुनिया की छोटी छोटी बच्चियों अगर दीन की बात आए तो असगर की कुर्बानी को याद कर लेना, अपने छोटे छोटे भाइयों को राहे दीन में खड़ा करके शहीद कर देना। अल्लाह ने कितनी हिम्मत दी थी अहले बैत को, अल्लाह ने कितनी मोहब्बत दी थी। एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप चलते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, सकीना को हवाले किया है, सकीना को ज़ैनब के हवाले किया है। ये बच्ची रो रो कर ताप ताप कर फौरन उतर जाती है, आप घोड़े पर सवार होते हैं। उसके बाद में चाबुक देते हैं, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार न था, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद में इमाम पाक ने फरमाया मेरे गाजी क्या दिल गया यजीदियों से, क्या जंग ना करेगा? घोड़े के आंख में रोकर आंसू आने लगे, हरकत करने लगा और कहने लगा ए इमाम अली मकाम मैं आशिक अहले बैत हूँ, यजीदी नहीं हो। ए आका हुसैन मेरे कदमों पर मोहब्बत की बेड़ियां पड़ चुकी है, मेरे दोनों पाँव को सकीना ने पकड़ कर रखा है। ए आका हुसैन अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो सकीना कुचल जाएगी, मैं सकीना को कुचल करके यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, आप सकीना को हटा दीजिए। आपने पलट कर देखा तो वो बच्ची घोड़े के दोनों पाँव पकड़ कर बैठी थी, दोनों घोड़े के दोनों पाँव को पकड़ कर बैठी थी। इमाम पाक खड़े उतरे, उतरने के बाद में बच्ची को छुड़ाया, कहने लगे बेटी छोड़ दे। बेटी ने छोड़ाया, आपने गोसा दिया, गोसा देने के बाद में आप वापस आए और आने के बाद में घोड़े पर सवार हुए हैं, घोड़ा मैदान कांजार पे ले जाकर के खड़ा कर दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों मैंने तुम्हें दीन की दावत दी है, लेकिन तुम मेरे खून के प्यासे हो, आ जाओ मैदान में आ जाओ। अब किसी के अंदर हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में आ जाओ। अल्लाह वो तारीख ये बता रही है, एकाएक लोग जंग करने के लिए आने लगे, एकाएक सारे लोग जंग करने के लिए आना शुरू हो गए, लेकिन वह शेर खुदा के शेर जिधर से आप गुजरते सबको गाजल मूली की तरह काटते चले हुए जा रहे थे, आपकी तलवार को सामने पलट हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था। अब एक नुकता ये रोक कर मैं फिर से समझा दूं, ये मेरे प्यारे इमाम अली मकाम जब करबला के मैदान में सबकी शहादत के बाद में एक दिन पहले जब आप सो रहे थे, ख्वाब में क्या देखते हैं? नाना जान तशरीफ ले आए हैं, आप बेचैन पे बेकरार थे, बेचैनी के आलम में क्या देखते हैं? नाना जान ने क्या नाम तशरीफ लाया है और उसके बाद में सीने से लगाया और इरशाद फरमाते बेटा हुसैन सब्र से काम लेना पड़ेगा। और उसके बाद में अली करमल्लाहु वजहहु को तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं बेटा हुसैन मेरे लाडल है, निजाम में कुदरत बरहम हो जाते, वरना में मैदान में आ जाता और बता देता अली का बेटा कौन है, मैं कौन हूँ। एक बेटा निजाम में कुदरत बरहम हो जाती, इख्तियार नहीं, वरना में आ जाता मैदान में भी बता देता, मसीहत इलाही को राजी नहीं है। लेकिन एक बेटा
बेटा मैदान कारजार में तू होगा बेटा, लेकिन हिम्मत मेरी होगी, ताकत मेरी होगी। नाना जान के गोद में पकड़ आया है, ए बेटा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, सब्र रज़ा का पेकर बनना पड़ेगा। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन आज करबला के मैदान में उतरा है, लाशों पे लाशें उठाकर इमाम हुसैन ने थक चुके हैं। करबला के मैदान में आप खड़े हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, हल मिन मुबारिज़, आओ मेरे मुकाबले में आओ मेरे जंग करने के लिए आओ। तारीख यूं बता रही है। उसके बाद में यजीदियों ने समझा 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, गमों का टूटा हुसैन, अब आसान कत्ल करना बड़ा आसान हो जाएगा, शहीद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ए मेरे प्यारे, तारीख यूं बता रही है, सारे लोग हमलावर हो जाते हैं, लेकिन मोहरे शेर खुदा के शेर, जब आपकी तलवारें जुल्फ़िकार चलती है मैदान करबला में, ऐसी तलवार चल रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था सिर्फ तरह आपके इमाम तलवार नहीं चला रहे हैं, बल्कि जन्नत से फरिश्ते आपके साथ में आ चुके थे। यजीदियों को कई तलवार नजर आने लगे और यजीदियों की लाशें बिछने लगे। थोड़ी ही देर में सारे लोगों को मौत से हाथ उतारने लगे। उसके बाद में जो मसीहत इलाही थे, जो मसीहत इलाही थे, ये मेरे प्यारों, जो अल्लाह का हुक्म था सैयद शुहदा सरकार इमाम आली मकाम की शहादत, वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया। आप फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब नजरें धरते हैं, आप कहते नाना जान अलविदा सलाम लीजिए, अभी आपका नवासा पहुंच नहीं सकता है। अम्मा फातिमा, जब तुम मुझे रोती देख लेते तुझे चैन नहीं पड़ता है। माँ फातिमा, तेरा बेटा आज शहादत का दूल्हा बनने वाला है। आपने अपने बाबा को आवाज लगाया, अरे बाबा मुझसे प्यार करने वाले प्यारे बाबा, देख तेरा बेटा, तेरा जो एक सस्ता छूटा था वो तेरा बेटा हुसैन आज करबला की धरती पर पूरा करने जा रहा है। ए मेरे प्यारों, तलवार चलती रही, अचानक इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार रोक ली। यजीदियों ने सोचा तलवार रुक गई है, अब ये सरेंडर कर देंगे हुसैन अपने आप को मेरे हवाले, अब ये सरेंडर करेंगे हुसैन अपने आप को मेरे हवाले। तलवार इमाम पाक ने इसलिए